नमस्कार। प्रधानमंत्री इस समय भूटान में है। ये 2 दिवसीय यात्रा कई मायने में बहुत खास है। कल वहां पहुंचने पर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने पारो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी तमाम विशेषताओं से हटकर अपनेपन के साथ की। इस गर्मजोशी की अपने पड़ोसी देश के साथ इस प्रकार के रिश्ते निभाने की परंपरा शायद ही कहीं देखने को मिले। 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन एलपीजी से लेकर अंतरिक्ष तक भारत भूटान के बीच कई अहम क्षेत्रों में समझौते हुए, हस्ताक्षर हुए और आज यानी दूसरा दिन भी बहुत खास होने वाला है। भूटान से इस ऐतिहासिक दौरे की सीधी कवरेज के साथ हम हाजिर हैं इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं रुकमा। A very good morning to you, Jaya, and to all our viewers as well. And as Jaya just mentioned, a very significant visit of Prime Minister Narendra Modi. It's the second day today of his visit to Bhutan, the first country that the Prime Minister has chosen to go to after he assumed office for a second time. In the studios as our guest for this very special show is Mr. S.R. Dayal, a former ambassador. A very warm welcome to you, sir. Thank you very much for joining us. So it's over to Jaya now to begin. जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भूटान के सांसद भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। रॉयल विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के भाषण इस मायने में भी खास है क्योंकि कल भारत और भूटान के बीच हुए समझौतों में से 7 शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कल अपने वक्तव्य में भी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय स्मारक चोर्डेन भी जाने का कार्यक्रम है। ताशी चोडजोंग में मेहमान नेता के सम्मान में एक सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाता है। पीएम मोदी विपक्ष के नेता डॉक्टर पेमा ग्यामसो से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा को संपन्न करने के बाद वे आज नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और भूटान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दौरे को लेकर वहां के छात्र बेहद उत्साहित हैं। We believe in Bhutan. Generally, we believe India is a very good neighbor and also a good friend, and we have a lot of ties actually historically. Modi ji is a very efficient, very dynamic leader. And we believe in a SAARC country like ours, we really need somebody like him to spearhead and bring SAARC as a region and grow SAARC together. So we really believe in Modi's leadership in India. And we believe that whole SAARC countries will also benefit out of his leadership. India has always been a supportive partner of Bhutan. I always see that India supports in every aspect. If I talk about your Prime Minister Modi, we heard that not only me, every one of us accept that he's really a dynamic leader. And since he was elected as a leader, as a Prime Minister of India, I see very good decisions that has come up in India. And on day one of his Bhutan visit, Prime Minister Modi held delegation-level talks with his Bhutanese counterpart, Lote Shering. Both leaders discussed steps to further expand their partnership across several sectors. Commemorating a path-breaking success story in bilateral relations, several MOUs were also exchanged. This handshake says it all. The warmth between the land of the Thunder Dragon and her neighbor India clearly visible. Bhutanese Prime Minister Lote Shering received Prime Minister Narendra Modi at the Paro airport. Then came the ceremonial guard of honor. On day one of his 2-day visit, Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with host PM Lote Shering at the Bhutan Parliament. 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा, इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था। इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं। भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति, संपन्नता और सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है। Prime Minister Lote Shering described the meeting as one between two old friends.
I had the privilege of sitting down with Modi ji for a meeting that was heartwarming and fruitful. I felt like I was having a conversation with a very close friend, a friend who cares, a friend who means a lot to us. From our conversation, His Excellency's focus on neighborhood first policies. After the meeting, both leaders proceeded to Simotka Zong. This nearly 4 centuries old fort monastery saw an intermingling of spirituality and diplomacy. It functions as a monastic and administrative center. For the first time ever, the historical monument acted as the venue where inauguration ceremony of several projects as well as MOUs exchange took place. In keeping with Buddhist tradition, PM Modi lit butter lamps and meditated before the statue of Lord Buddha before the ceremonies. PM Modi and PM Shering jointly inaugurated 5 projects, beginning with the formal inauguration of the Mangde Chu hydroelectric power project. Mangde Chu is the most effective hydroelectric power project in South Asia. It has a 720 megawatt capacity across 4 units and has been constructed at a cost of Rs 512 crore. 3 out of the 4 units have already been commissioned. A power purchase agreement for sale and purchase of Mangde Chu power was also exchanged. PM Modi also launched a stamp commemorating 5 decades of Indo-Bhutan hydropower cooperation. हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। Both leaders then jointly inaugurated the ground situation for South Asian satellite. Prime Minister Narendra Modi also launched the RuPay card. He made a purchase with the card. He also inaugurated a direct link to aid communication and sharing of information between universities in India and Bhutan. Continuing financial support towards Bhutan's development, India announced an additional $100 million worth of currency swap. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भूटान के लिए करेंसी स्वैप की लिमिट बढ़ाने के लिए हमारा नजरिया पॉजिटिव है। इस बीच विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त $100 मिलियन भूटान को उपलब्ध होंगे। 9 MOUs were inked. These include one on aircraft accident and incident investigation, another between the National Legal Institute of Bhutan and the National Judicial Academy of India, between Jigme Singye Wangchuk School of Law and the National Law School of India University, Department of Information Technology and Telecom, Bhutan, and ISRO, National Knowledge Network of India and the Drup Research and Education Network, as well as the Royal University of Bhutan and 4 leading Indian universities. Bhutan ranks high on the World Happiness Index because of its close connect to nature as well as deep spirituality. Prime Minister sought blessings from monks at Simtoka Zong. The entire ceremony concluded with Prime Minister Modi planting a cypress sapling, the national tree of Bhutan. The symbolism was clear: 2 ancient and deeply spiritual lands coming together for common good. Vishal Baristo, Sudhakar Das and Neeraj Singh in Thimphu for DD. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सम्राट जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत भूटान के रिश्तों को आगे ले जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। And joining us in the studio is our guest, Mr. S.R. Tayal, former diplomat, as we introduced earlier. Coming to you, Mr. Tayal, how do you look at this visit? It's being regarded as very significant, although it's the government of India has maintained that it is in line with India's neighborhood first policy. The fact that Bhutan becomes once again the country that the Prime Minister chooses to visit first after assuming office for a second time. It's a very important visit. It's a very significant visit. It has strong symbolism, a very strong message, as well as a lot of content. This is in the first term also, Prime Minister Modi's first visit abroad was to Bhutan, and now in his second term again the
first standalone bilateral visit is to Bhutan. Our Foreign Minister Shri Jaishankar also, his first visit after becoming Foreign Minister was to Bhutan. Bhutan is a very close friend of India. वो बिल्कुल परम मित्र है भारत का. And Bhutan is at the intersection of our good neighborhood policy or neighborhood first policy as well as our Act East policy, because Bhutan is a member of BIMSTEC, and in different ways India and Bhutan are working together for each other's economic empowerment and economic advancement. And here we see there is so much of similarity between India and Bhutan, culturally, spiritually, and a strong mix of tradition as well as a desire to become a modern country, to become a developed country, to become a prosperous country. And in different ways India and Bhutan is doing it. Prime Minister mentioned that happiness index which Bhutan follows. So they are very environment conscious. Whatever Pradhan Mantri, our Prime Minister also gives a lot of importance these days to environment. He spoke about that plastic should be removed in his Independence Day address. Bhutan is already doing it. They give a lot of importance to environment protection. In fact, they control, regulate the number of tourists which come to Bhutan so that there is no damage. But they want to now move on. Their young generation wants more prosperity, and that's why there have been 9 MOUs which have been signed. And India is a very, very strong partner in Bhutan's development. Of course, hydroelectric is the basis, power is the basis of India-Bhutan cooperation, and one 750 megawatt hydroelectric power project was inaugurated jointly yesterday by our Prime Minister and the Bhutanese Prime Minister. But as Foreign Secretary Vijay Gokhale said yesterday, there are more directions in which this cooperation will go. Bhutan wants more trade of Bhutanese products to India, and a fund has been created to facilitate that trade. And education, of course, the young populations are there. Bhutan also has a young population, and most of those students come to India for education. But there have been some reports that seats are not available in Indian educational institutions, so they are going to other countries. I think that's why Prime Minister is making it a point. He is going to the university in Thimphu, and he will be addressing it soon. So it is very clear that India is a partner in whatever the aspirations of Bhutan are, Bhutanese people are, Bhutanese government are, and particularly the youth of Bhutan are. बिल्कुल यकीनन जितना गौरवशाली इतिहास रहा है उतना ही आशाजनक अब भविष्य भी नजर आ रहा है. जिस तरह की एलपीजी से लेकर अंतरिक्ष तक हमने एमओयू साइन किए हैं और हस्ताक्षर हुए हैं. आज जैसे हम बात करें तब से कि वो रॉयल यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पर जो छात्र हैं उनको वो संबोधित करने वाले हैं. हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी छात्रों से मुखातिब होते हैं, हमने पहले भी कई बार देखा है, भारत में भी कई परीक्षा से पहले जब मोदी उनसे मिले और उनको उत्साहित करते हैं तो वाकई युवाओं के बीच एक अलग ही स्वरूप निकल कर आता है प्रधानमंत्री मोदी का. और आज जब छात्रों से वो बातचीत करेंगे और छात्रों का हमने जिस तरह सुना वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं. एक नॉलेज नेटवर्क, एक नॉलेज का जो आदान प्रदान भारत और भूटान के बीच होने जा रहा है, जो शिक्षा के बीच कई महत्वपूर्ण एमओयूज पे हस्ताक्षर हुए हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तकनीक की बात होती है, ट्रेड की बात हो रही है, लेकिन एक नॉलेज का आदान प्रदान और जिस तरह से एमओयू साइन हुए हैं IIT के साथ और वहाँ की रॉयल यूनिवर्सिटी के साथ, छात्र आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये कितनी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह के एमओयू साइन होते हैं. अगर हम दुनिया में जिस प्रगति की क्या दिशा है वो देखें तो कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ है और एक नॉलेज की डायरेक्शन में है कि नए जो जॉब्स होंगे, नई जो एम्प्लॉयमेंट आएगा और नई नई कंपनियां जो बनेंगी वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड होंगे. बिग डेटा की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और इस सब में भारत एक अग्रणीय रोल अदा कर रहा है. और उसमें भारत का ये चाहना है कि भूटान जो हमारा मित्र है वो भी हमारे साथ साथ चले. तो इस तरह जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन वहाँ बनाया गया है कि साउथ एशिया का जो सैटेलाइट जो हम लोगों ने फ्री भारत ने ये दिया है सब साउथ एशियन देशों को, उसका पूरा जो लाभ है वो भूटान के देशवासियों को मिले, भूटान के स्टूडेंट्स को मिले, और भूटान के जो जितने वहाँ पे शिक्षा संस्थाएं हैं
वो सब भी उससे लिंक्ड हों। पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो नई दिशा में जो एजुकेशन और शिक्षा है, वो जो इस तरह से पूरा विश्व में परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे एक अलाइनमेंट में हो, जो कि भूटान के जो नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स जब वो विश्व में आएँ और एम्प्लॉयमेंट की तलाश करें, तो उनकी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उनको पूरी तरह इक्विप करे कि वो पूरी तरह से विश्व में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में भागीदार बन सके। मैं समझता हूँ इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। और प्रधानमंत्री का, जैसा आपने कहा, वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो जो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और हमेशा कुछ नई बात करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जो सुनने वाला है उसके दिल को छू लेती है। और जो वो ये भी समझ लेते हैं कि जो उनके सामने ऑडियंस है वो क्या चाहती है, उसकी अपनी क्या अपेक्षाएं हैं, उसकी अपनी क्या एम्बिशंस हैं। और वो हमेशा जो अपना मैसेज देते हैं, अपनी जो बात कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं कि जो सुनने वाला है उसकी अपेक्षाओं के अनुसार हो और उसे एक होप का एक सेंस मिले कि भविष्य अच्छा है और भारत हमारा पार्टनर है एक अच्छे भविष्य के डायरेक्शन में। Right, sir. Well, India and Bhutan, as we say, share a special relationship that has gone on for decades. For generations of Bhutanese youth have listened to and enjoyed Bollywood songs. At one time, they were, one of the most popular source of entertainment. Do you feel that the current situation, in the current times, however, there is a change in the way Bhutanese youth look at their lives and what they are seeking and what they desire? And in that context, how do you see the Prime Minister's focusing on them today, the Prime Minister's outreach to them in his speech today? It is very important that our cultural connection and Bollywood connection passes on from one generation to another. Right. We have seen, for instance, in Central Asia also Indian film, Bollywood is very popular, but we have to make sure that the next generation also enjoys that. Right. Now, in that, because the family values in India and Bhutan are similar, the thinking process is similar, and the way the educated young youth of Bhutan thinks, I think Indian youth also thinks the same way, works the same way, it has the same aspirations, same hopes, same interest in romance and all Right. that. So I think there is a strong connect, and this will continue. And Prime Minister's direct communication with the youth of Bhutan will reinforce this connection between the youth of Bhutan and India. Right. Right. Well, Mr. Tayal, but also, through this long relationship, there were concerns in between. Would you agree with experts who say that there were concerns that maybe perhaps India was taking the relationship too much for granted? And in that context, has Prime Minister Modi's, the steps he has taken, the steps his government has taken to boost ties between the two countries, have they made a huge difference to strengthen that relationship? Yes, it is very important that some other countries are trying to entice Bhutan, and all of us remember the Doklam standoff of 2017. Right. And Bhutan, the government of Bhutan, the people of Bhutan stood by India, and we stood with the people of Bhutan, that their security concerns are like security concerns of India. But there are always some elements who try to ask for more, and we have to be very conscious. And that's why Prime Minister Modi always treats the Bhutani king, Bhutan Prime Minister, as his equal. When the inauguration took place and the BIMSTEC leaders had been invited in May for the second inauguration of Prime Minister Modi, and Prime Minister of Bhutan had come and had participated in that. So we have to nurture this relationship, and Prime Minister Modi and this entire government is very conscious of that in no way the Bhutanese should feel that they are not being given importance by the government of India. They are vitally important to us for India's security, for India's power needs, because the target is to have 10,000 megawatts of power
generated in Bhutan, most of that power will be consumed by India. They will get very good payment for that, and all their hydroelectric projects are 70% grant and 30% Funded, assistance, right. and so there is a lot of technical help by India, a lot of financial help by India, and that is very well acknowledged by the government of Bhutan, and people of Bhutan. But we have to go on doing this so that the aspirations of the people of Bhutan to enhance their standard of living, to become a very prosperous and happy country, in that India continues to be a very strong and the most important partner of Bhutan. बिल्कुल एम्बेसडर दयाल की पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया मकदीशु में और वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कई नए क्षेत्रों में भी सहयोग की बात हो रही है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या नॉलेज सोसाइटी की जो बात हो रही है। तो तभी यही वजह है कि शायद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसको एक नया आयाम देंगे। जो नए क्षेत्रों में भारत और भूटान की जो एक नई रिश्तों की जो शुरुआत हो रही है, उसको आप देखते हैं। और कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं? 10 जो 9 MOU साइन हुए हैं, उनके अलावा भी ऐसे कई क्षेत्रों हैं जिन पर चर्चा हुई और बातचीत हुई, और बात हुई कि इस पे आगे भी हम साथ में काम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्षेत्र आपको लगता है भारत और भूटान में पनबिजली के अलावा जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है भारत का आने वाले वर्षों में? देखिए, भूटान का बहुत हिली कंट्री है और इसलिए जो भी उनकी प्रगति होगी, जो भी सहयोग होगा, मैं समझता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होगा। तो जैसे हेल्थ सेक्टर है, उसमें भारत बहुत आगे है और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकती है, क्योंकि ये बड़ी क्लीन इंडस्ट्री होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी आयाम हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं और फिर प्रदूषण भी उससे नहीं होता है। मैं समझता हूँ उस डायरेक्शन में भी भारत और भूटान आगे काम करेंगे। Right, so we'll be coming back to you right now, but on the phone line from Thimphu is connected our correspondent Neeraj Singh. Neeraj, a very good morning to you. Well, Prime Minister Narendra Modi, we believe, is likely to arrive there at the Royal University at any moment from now. Give us an update. देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जो रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान है, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और वो उनको संबोधित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो 10 समझौते हुए हैं, उनमें 7 समझौते शिक्षा को लेकर हुए हैं। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक बड़ा अचीवमेंट है दोनों ही देशों को, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ जिन्होंने जो समझौते किए, उनमें 7 समझौते शिक्षा को लेकर हैं। अब भूटान यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी और जो टॉप IITs हैं, उनके साथ सीधे जुड़ जाएंगे और वहाँ का जो भी साहित्य है, जो भी पढ़ाई है, उसका जो लाभ है वो भूटान के जो छात्र हैं उनको मिलेगा। आपको पता होगा कि 2003 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान, और अभी की करीब बात करें तो 10,000 के करीब जो स्टूडेंट हैं वो इसमें पढ़ रहे हैं। ये जो समझौता है वो सिर्फ शिक्षा को लेकर ही नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आने वाला भविष्य है, भूटान का भविष्य है। इसके अलावा जो हमारे टॉप IITs हैं, उनसे जुड़ाएंगे, उनके बच्चों से जुड़ाएंगे। तो ये जो भविष्य आगे बढ़कर दोनों ही देशों के संबंधों को न केवल और नजदीक लेकर आएगा, बल्कि विकास के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम है वो और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जो भूटान के जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान, रॉयल यूनिवर्सिटी, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे और उनको संबोधित करेंगे। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कॉलरशिप्स की संख्या है वो भी 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। जो नालंदा विश्वविद्यालय से भूटान के पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, आपने अभी वहाँ के छात्रों से बात की, हमने उनको सुना। क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से, और क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं आज मोदी जब उनके बीच पहुंचेंगे? तो देखिए, हमने तमाम जो भूटान के स्टूडेंट हैं उनसे बात की। उनका ये कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से भारत को लेकर आगे जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंचों पर जिस तरह से भारत का पक्ष रखते हैं, एक क्लियर जो सोच है वो रखते हैं, और एक बड़े एनर्जेटिक लीडर हैं। सार्क देशों का हमेशा से जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे कि जिस तरीके का विकास भारत के अंदर हो रहा है, सार्क देशों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। एक जो
कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग की बात भारत और भूटान के बीच में हुई है। अगर उसमें भी जो भूटान है भारत के साथ मिलकर आगे चलेगा तो निश्चित तौर पर टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आ सकती है। इसके अलावा जो भूटान की जो कृषि है उसको भी लाभ मिलेगा। सुपर हॉस्पिटल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर उसे किसी तरह की भूटान को जरूरत है तो भारत उसके लिए पूरी तरह से सहयोग करेगा। तो ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो कह सकते हैं कि परंपरागत क्षेत्रों से हटकर क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास की अपार संभावना है, क्योंकि अभी तक हमारा ज्यादातर विकास या तो पनबिजली परियोजनाओं को लेकर होता था, या रोड कनेक्टिविटी को लेकर होता था, या फिर यहाँ की पंचवर्षीय योजनाओं में जो आर्थिक निवेश है उसको लेकर होता था और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने नए रास्ते खोजे हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, स्पेस के अंदर भूटान को लेके आने की बात हो, टेलीमेडिसिन या दूसरे और जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो विकास और सहयोग की अपार संभावना है। तो ये सारे जो द्वार हैं वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की इस 2 दिवसीय यात्रा से खुलेंगे। और भूटान की अगर हम दृष्टि से देखें तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये यात्रा भूटान के जो छात्र हैं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि 10 समझौतों में से 7 समझौते शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। Right, Neeraj. Well, Prime Minister Narendra Modi has always focused on the youth in various ways. He has always been talking about youth power. We talk about how close ties are between India and Bhutan, and rightly so, because Bhutanese youngsters, young students there continuously come to India for studies. You've been there in Bhutan for a while, in Thimphu, the capital. What evidence do you see of the India-Bhutan connect between the youth, and how excited and enthusiastic are they about listening to the Prime Minister? देखिए बिल्कुल रुकमा, क्योंकि जब कल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में जो यूथ थे पारो से लेकर थिम्पू के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, कॉलेजों के जो बच्चे थे वो प्रधानमंत्री का वेलकम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनमें किस तरह का क्रेज है हमारे प्रधानमंत्री का। और दूसरी, प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के जो छात्र हैं, दोनों देशों के जो लोग हैं, उसके लिए भी कई सारी जो योजना है उनकी शुरुआत की। खासतौर से मैं रुपे कार्ड का जिक्र करूंगा। Right, Neeraj, Neeraj, sorry to interrupt you. We'll be back with you, but well, Prime Minister Narendra Modi has just tweeted and said, in a short while from now, we'll be addressing students at the Royal University of Bhutan, looking forward to interacting with the bright youth of Bhutan. तो बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी और वहां पर वो छात्रों से मुखातिब होंगे। और यही वजह है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का उत्साह भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने एक ट्विटर संदेश भी किया और अपने संदेश में वो लिखते हैं कि बहुत ही खुशी हो रही है मुझे वहाँ पहुँचने की और मैं भी उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। नीरज, जिस तरह से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और रॉयल यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में उनका काफिला आता नजर आएगा कुछ ही देर में। जो गहमा गहमी है, चहल पहल है, वो शुरू हो चुकी है। वहां पर जो लोग हैं इंतजार में हैं प्रधानमंत्री के, हाथों में फूल लिए, चेहरों पर मुस्कान लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। Right, Prime Minister Narendra Modi, those visuals we are getting you there from the Royal University, and our correspondent Neeraj Singh there covering this event for us. और बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होंगे छात्रों से और इस वक्त वहां पहुंच गए। नीरज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारी और सुखद दृश्य हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं और फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। काफी पारंपरिक अपनी वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं और वही उसी अंदाज में वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और ये जो सिलसिला है मैं बता दूं, कल से ही शुरू हुआ था। जब प्रधानमंत्री पारो से चले थे तो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके स्वागत के लिए लगातार रोडों पर खड़े रहे। जब प्रधानमंत्री होटल में पहुंचे थे अपने, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट थे और जो छोटे बच्चे थे वो भी वहां पर रहे थे। और इवन एक छोटी सी बच्ची ने वेलकम किया था प्रधानमंत्री का फूलों का गुलदस्ता देकर, और प्रधानमंत्री ने भी बड़ा उनको दुलार भी किया था। दूसरी, हम जो यूथ की हम बात कर रहे हैं जया, तो प्रधानमंत्री एक ऐसे लीडर हैं पूरी दुनिया में
जिनको यूथ करोड़ों की संख्या में फॉलो करता है, बड़ी संख्या में फॉलो करता है। और वो जो यूथ है प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट भी सीधे होते हैं। और यही कारण है कि तमाम जो प्रयास है प्रधानमंत्री के यही होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो यूथ को दिया जा सके, क्योंकि यही यूथ है जो अपने देश को आगे लेके जाएगा। प्रधानमंत्री जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर एग्जाम वॉरियर जैसी किताब को भी लिखते हैं और ये बताते हैं कि जो छात्र हैं, जो भारत का जो भविष्य है वो किस तरह से आगे जाना चाहिए, उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का मानसिक रूप से उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री का ध्यान बच्चों से लेकर हर उस शख्स तक रहता है जिसको लाभ पहुंचाया जा सके, जिसको योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, जिसको आगे लेके जाया जा सके। और ये प्रयास सिर्फ भारत के अंदर नहीं होता है, प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि उनके जो पड़ोसी जो मुल्क हैं, जो हमारे जो दोस्ती है जिन मुल्कों के साथ, उनके लोग भी और वो देश भी इसी तरीके से आगे बढ़े, इसी तरीके से तरक्की करे, उनके नागरिक भी इसी तरीके से आगे जाए। बिल्कुल नीरज, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंच तैयार है और कुछ देर में ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और छात्रों से बातचीत करेंगे। नीरज, कई बार हम देखें कि प्रधानमंत्री कई ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जिन पर हम आमतौर पर बातचीत तो जरूर करते हैं, लेकिन इस तरह के मंच पर छात्रों से जुड़ना और उनसे उन बारों में, उन विषयों पर चर्चा करना जिनके बारे में वो सुनना चाहते हैं। अगर हम आजकल की जनरेशन नेक्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री बिल्कुल कदम से कदम ताल मिलाकर उनके साथ ही हैं। जिस तरह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उनकी लोकप्रियता है, उनके फॉलोअर्स हैं, लगातार वो बने रहते हैं, कनेक्ट करते हैं यूथ के साथ। और वही उनकी जो बानगी है, उनके जो व्यक्तित्व की खासियत है, वो अलग जगह निखर कर आती है जगह जगह पर। यहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरह से क्या कुछ बातें वो करने जाने वाले हैं प्रधानमंत्री इन छात्रों के साथ? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का हमेशा से यूथ पर फोकस रहा है और कैसी भी स्थिति रही हो, उन्होंने यूथ को हमेशा से ध्यान में रखकर तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो भी बनाई हैं। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट हैं, खासतौर से जो भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, वो भी यही चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम भारत और भूटान आपस में मिलकर बढ़ा रहा है, वही कदम और भी आगे जाए, उनमें और ज्यादा कह सकते हैं कि जो संबंध है वो ज्यादा मधुर बनने चाहिए। अभी जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो स्कॉलरशिप है वो 2 से बढ़ाकर 5 की गई है। ऐसे भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो भूटान के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भूटान के स्टूडेंट भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, भारत जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो वो चाहते हैं कि ये जो दोस्ती का जो सिलसिला है वो आगे भी लगातार चलना चाहिए और ये जो संबंध है वो और ज्यादा बढ़ने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का, या भारत में जिस तरह की शिक्षा का स्तर है उसका लाभ भूटान के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको भी मिले। तो वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस ओर एड्रेस करें। Right, Neeraj, and take us through, the enthusiasm that you see among the youth to listen to the Prime Minister. We do believe that he is a great source of inspiration for them. तो प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भूटान दौरे पर है और इस दौरान वो इस वक्त अपने दूसरे दिवस के दिन वो पहुंचे हैं थिम्फू की रॉयल भूटानीज यूनिवर्सिटी, जहां पर वो युवा छात्रों को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं थिम्फू से। Right, live visuals they're coming in from Thimphu, the Royal University of Bhutan that Prime Minister Narendra Modi will be addressing in a short while from now. He's just arrived on the dais and he will be addressing the youth gathered there for the occasion. तो बिल्कुल भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ कनेक्शन भूटान के छात्रों और शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के नए साधनों से जोड़ेगा। ये दोनों देशों के बीच साझा नॉलेज सोसाइटी की स्थापना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से हमारे और भूटान दोनों ही देशों के युवाओं को बहुत ही लाभान्वित करने वाला है। रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। An historic event here at the Royal University of Bhutan. It is unprecedented because this is the first time one of the greatest leaders of the world's largest democracy,
has come to speak to students of one of the smallest universities. It indeed is an extraordinary moment, and each one of us here will cherish this for the rest of our lives. With this, I will now like to request Ms. Tenzin Yudin, student, to give the welcome remarks. Tenzin Yudin, please. Your Excellency, Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Your Excellency, Dr. Lote Tshering, Honorable Prime Minister of Bhutan, Excellencies, ladies and gentlemen, Kuzu Zampala. On behalf of the students of Bhutan, it is my great honor to warmly welcome His Excellency Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, to Bhutan. Elsewhere, it would be rare for the leader of the largest democracy on the planet to make time for teachers and students of one of the smallest universities in the world. But we all know that there is nothing ordinary here. Much like the exceptional and time-tested relations between Bhutan and India, we have in Prime Minister Modi an exceptional leader, an extraordinary human being, and a remarkable author. I was absolutely delighted to read Your Excellency's book titled Exam Warriors, which I believe is full of truths about giving the power to empower. An inspiring phrase that caught my attention from the book was, and I quote, "Discover yourself, experience all that life offers, step out of your comfort zone, do different things and do things differently," I unquote. This particular abstract from Your Excellency's book matched so much with the daily advice from my father. The book, Exam Warriors, became a friend not only to me, but also to millions of youth, not only while taking exams, but also in facing life. That is why, ever since we learned about Your Excellency's talk, we have all looked forward to this moment with great anticipation. To be in Your Excellency's presence and receive your words of wisdom is indeed a privilege of a lifetime. Our collective happiness at the opportunity to welcome Your Excellency to this event therefore knows no bound. Your Excellency, it is not only from the perspective of teachers and students that knowledge sharing is the bedrock of relations between Bhutan and India. Bhutan's modern education grew from the minds of the teachers from India, and Your Excellency, as I speak, there are currently all the students in Bhutan and 3,748 Bhutanese students studying in India who are eagerly looking forward to your address to students today. Your Excellency's talk here today is a continuation of that long tradition of exchange of knowledge between Bhutan and India. Your Excellency, today we look forward to your words of wisdom that I am confident will inspire all the students in Bhutan. Thank you. Thank you, Tenzin Yudin, for the welcome. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we now come to the moment we have all been waiting for. It is with great honor and privilege that we invite Your Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, for your address. Your Excellency, please. Your Excellency, Dr. Lote Tshering, Prime Minister of Bhutan, Honorable the National Assembly and the National Council of Bhutan, distinguished Vice Chancellor and faculty members of the Royal University of Bhutan, my young friends, Kuzu Zampala, Namaskar. It is a wonderful feeling
to be with you all here this morning. I'm sure you are thinking today is Sunday and you have to attend a lecture. But I will keep it brief and on topics that you would relate with. Friends, anyone visiting Bhutan is struck as much by its natural beauty as by the warmth, compassion, and simplicity of its people. Yesterday, I was at Semtokha Jong, the foremost example of the richness of Bhutan's past and the greatness of its spiritual heritage. During this visit, I have had the opportunity to interact closely with the present leadership of Bhutan. I once again received their guidance for the India-Bhutan relationship, which has always benefited from their close and personal attention. Now today, I am here with the future of Bhutan. I can see the dynamism and feel the energy. I am confident that this will shape the future of this great nation and its citizens. Whether I look at Bhutan's past, present, or future, the common and constant traits are deep spirituality and youthful vigor. These are also the strengths of our bilateral relationship. Friends, it is natural that the people of Bhutan and India experience great attachment to each other. After all, we are close not just due to our geography, our history, culture, and spiritual traditions have created unique and deep bonds between our people and nations. India is fortunate to be the land where Prince Siddhartha became Gautam Buddha, and from where the light of his spiritual message, the light of Buddhism, spread all over the world. Generations of monks, spiritual leaders, scholars, and seekers have burned that flame bright in Bhutan. They have also nurtured the special bond between India and Bhutan. As a result, our shared values have shaped a common world view. This is visible in Varanasi and Bodh Gaya, and also in Jongs and Chortans. And as people, we are fortunate to be the living vehicle of this great legacy. No other two countries in the world understand each other so well or share so much. And no two countries are such natural partners in bringing prosperity to their people. Friends, today, India is witnessing historic transformation in a wide range of sectors. India is eliminating poverty faster than ever before.
the pace of infrastructure construction had doubled in the last 5 years. We have just pledged about $15 billion for next generation infrastructure. India is home to the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, that offers health assurance to 500 million Indians. India has among the cheapest data connectivity in the world, which is directly and indirectly empowering millions. India is also home to among the biggest startup ecosystem in the world. This is indeed a great time to innovate in India. These and many other transformations have the dreams and aspirations of the youth of India at their core. Friends, today, I stand here among the best and the brightest youth of Bhutan. His Majesty told me yesterday that he interacts with you regularly and had addressed the last convocation. It is from you all that Bhutan's future leaders, innovators, business persons, sports persons, artists, and scientists will emerge. A few days back, my good friend, Prime Minister Dr. Tshering wrote a Facebook post that touched my heart. In that post, he mentioned about exam warriors. And just now also, that student mentioned about that book. The Exam Warrior, a book I wrote about how to face exams without stress. Everyone faces exams in school and colleges and also in the larger classroom of life. Can I tell you something? Much of what I wrote in Exam Warriors is influenced by the teachings of Lord Buddha, particularly the importance of positivity, overcoming fear, and living in oneness, be it with present moment or with Mother Nature. You are born in this great land. Therefore, these traits come naturally to you and shape your personality. When I was young, the search of these traits took me all the way to the Himalayas. As children of this blessed soil, I am confident that you will contribute to finding solutions to the problems of our world. Yes, we have challenges, but for every challenge, we have young minds to find innovative solutions to overcome them. Let no limitation constrain you. I want to tell you, there is no better time to be young than now. The world today offers more opportunities than ever before. You have the power and potential to do extraordinary things which will impact generations to come. Find your real calling and pursue it with full passion. Friends, India-Bhutan cooperation in hydropower and energy
is exemplary. But the real source of power and energy of this relationship are our people. So, it is people first, and people will always be at the center of this relationship. This spirit is clearly seen in the outcomes of this visit. Going beyond the traditional sectors of cooperation, we are seeking to cooperate extensively in new frontiers, from schools to space, digital payment to disaster management. Our cooperation in all these sectors will have a direct impact on young friends like you. Let me give some examples. In this day and age, it is crucial to connect scholars and academics beyond borders so that creativity and talent of our students bring them at par with the best in the world. Cooperation between India's National Knowledge Network and Bhutan's Dukren, which became a reality yesterday, will serve this purpose. It will provide secure and fast connectivity between our universities, research institutions, libraries, healthcare, and agricultural universities. I urge you all to make full use of this facility. Friends, another example is the frontiers of space. At this very moment, India's second moon mission Chandrayaan-2 is on the way to the moon. By 2022, we intend to place an Indian in space on Indian spacecraft. All these are the results of India's own achievements. For us, the space program is not just a matter of national pride. It is a vital instrument of national development and global cooperation. Friends, yesterday, Prime Minister Chairing and I also inaugurated the Thimphu ground station of the South Asia satellite and expanded our space cooperation. Through satellites, benefits of telemedicine, distance education, resource mapping, weather forecasts, and even warning of natural disasters will reach even remote areas. It is even a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan's own small satellite. I hope that someday, soon, many of you will be scientists, engineers, and innovators. Friends, for centuries, education and learning have been central to this ties between India and Bhutan. In ancient times, Buddhist teachers and scholars formed the bridge of learning between our peoples. This is a priceless heritage which we wish to preserve and promote. Therefore, we welcome more students of Buddhism from Bhutan in institutions such as Nalanda University, a historical global seat for learning and Buddhist traditions.
which is revived at the very place where it existed 1500 years ago. The bond of learning between us is as modern as it is ancient. In the 20th century, many Indians came to Bhutan as teachers. Most Bhutanese citizens of older generations would have had at least one Indian teacher during their education. Some of them were honored by His Majesty last year, and we are grateful for this gesture, generous and kind gesture. Friends, at any point of our over 4,000 students from Bhutan are engaged in studies in India. This number can and should grow. As we march forward to develop our countries, we also need to keep pace with ever-changing technological landscape. It is therefore important that we collaborate in all areas of emerging technologies and education. I am happy that yesterday we have begun new chapters of engagement between India's premier IITs and this prestigious university. We hope that this will lead to more collaborative learning and research. Friends, in any part of the world, if we ask the question, what do you associate with Bhutan? The answer will be the concept of gross national happiness. I'm not surprised. Bhutan has understood the essence of happiness. Bhutan has understood the spirit of harmony, togetherness, and compassion. This very spirit radiates from the adorable children who lined the streets to welcome me yesterday. I will always remember their smiles. Friends, Swami Vivekananda had said, every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. Unquote. Bhutan's message to humanity is happiness. Happiness which springs from harmony. The world can do with a lot more happiness. Happiness which shall prevail over mindless hate. If people are happy, there will be harmony. Where there is harmony, there will be peace. And it is peace that will help societies achieve progress through sustainable development. In a time where development is often seen in conflict with tradition and the environment, the world has much to learn from Bhutan. Here, development, environment, and culture are not at loggerheads, but are in synergy. With the creativity, energy, and commitment of our youth, our nations can achieve all that is required for a sustainable future, whether it is water conservation, or sustainable agriculture, or making our societies free of single-use plastic. Friends, during my last visit to Bhutan, I had the privilege to visit the Temple of Democracy, the Parliament of Bhutan. Today, I have the honor to visit this Temple of Learning. Today, we also have in the audience Honorable
members of the Parliament of Bhutan. I especially thank them for their distinguished patience. Democracy and education both aim to set us free. Neither can be complete without the other, and both help us to achieve our fullest potential and be the best we can. This seat of learning will once again set free our spirit of inquiry and will also keep the student within us alive. As Bhutan soars high in these endeavors, your 1.3 billion Indian friends will not only just look on and cheer you with pride and happiness, but also they will partner you, share with you, and learn from you. With these words, I would like to thank the Chancellor of the Royal University of Bhutan, His Majesty, the King, the Vice Chancellor, and the faculty of the university, and all of you, my young friends. You all have honored me with your invitation and given me so much time, attention, and even more affection. I go back with a lot of happiness and positive energy from you all. Thank you very much. Tasi Del. आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का सीधा संबोधन रॉयल भूटानीज यूनिवर्सिटी में, जहां पर वो छात्रों से इंटरेक्ट कर रहे थे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रविवार का दिन है और इसलिए मैं काफ़ी संक्षिप्त में बोलूंगा, लेकिन आपसे मुखातिब होना वाकई बहुत ही उत्साहजनक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पिछली बार मौका मिला था टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जाने का और इस बार उन्हें मौका मिला है टेम्पल ऑफ लर्निंग में आने का, यानी कि छात्रों के बीच आने का। उन्होंने कहा कि छात्रों के माध्यम से, युवा भूटानीज स्टूडेंट के माध्यम से भारत और भूटान की संबंधों में एक नई ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ पनबिजली क्षेत्र में नए सहयोग के बाद इस बार प्रधानमंत्री ने युवाओं से बातचीत की है। भूटान के भविष्य के सामने खड़ा हूं, प्रधानमंत्री ने इन शब्दों के साथ वहां मौजूद छात्रों को संबोधित किया और उनसे मुखातिब हुए। Right, Prime Minister Narendra Modi there at the Royal University of Bhutan speaking to the students. He said that no other two countries in the world understand each other so well. He was referring to India-Bhutan ties and said that today India is undergoing a historic transformation in a wide range of sectors, and he is welcoming students of Bhutan, more and more youngsters of Bhutan, to come to India to study and continue with the special relationship that India and Bhutan have always shared. जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर दयाल, जिस तरह से हम सोचते हैं, तमाम क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे थे कि पनबिजली योजना को लेकर हमेशा से ही भारत और भूटान के बीच बहुत ही गहरा सहयोग रहा है, लेकिन इस बार युवाओं को जोड़ने की कोशिश की। अपनी द्विपक्षीय वार्ता के बीच में यहाँ प्रधानमंत्री जो वहाँ की जो यूथ है उनसे कनेक्ट होते हुए नजर आए। जिस तरह से शुरुआत में ही जब उनका स्वागत हुआ और वहाँ से लेकर अब रॉयल यूनिवर्सिटी में बच्चों को संबोधित करते हुए, किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो एक नई अप्रोच है, एक नई आउटरीच, एक स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना और उनसे बात करना और उनको भारत और भूटान के रिश्तों को नया आयाम देने में उनके योगदान को भी शामिल करना। प्रधानमंत्री का भाषण बड़ी प्रभावशाली था और बहुत एक इमोशनल भी था, और उन्होंने तीनों आयाम कवर किए। एक पास्ट बात की कि स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा कनेक्शन है भारत और भूटान के बीच में, भारत और भूटान के लोगों के बीच में। प्रेजेंट की भी बात की कि किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और भूटान भी उसके साथ आगे बढ़े, किस तरह हम चंद्रयान का हमारा जा रहा है, 2022 तक हम एक भारतीय को अंतरिक्ष में भी भेजने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा कि भूटान के लोग भारत आके एक सैटेलाइट बनाए
और उसको हम अंतरिक्ष में छोड़ेंगे। और उन्होंने कुछ जो बच्चों के लिए एग्ज़ाम वॉरियर का जो उनकी पुस्तक है उसका भी जिक्र किया कि ये टेंशन है, सबको रहता है, दुनिया आप जब आगे जाएंगे तब भी एक एग्ज़ाम तो लाइफ लॉन्ग रहता है। पर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात ये की कि आगे के लिए आप प्रिपेयर करिए, अपने को नॉलेज वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करिए। 4000 भूटानी स्टूडेंट भारत में पढ़ते हैं, उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। तो नॉलेज के बेसिस पे जो आगे प्रगति होगी भूटान में होगी, उसमें भारत उनके साथ है। उन्होंने टीचर्स की बात की कि भारत के बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते रहे हैं, स्कूल्स में भी पढ़ाते रहे हैं, और पिछले साल शायद उनको ऑनर भी किया गया था, वहाँ के महामहिम ने किया था, राजा ने किया था। तो एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश उन्होंने वहाँ के विद्यार्थियों को दिया कि आपका जो भविष्य है, आप जो बनना चाहते हैं, जिस भी रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, भारत आपका एक मित्र है। भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके साथ आप पढ़िए। और जो नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा जो एक नया रास्ता खुल रहा है, नॉलेज की शेयरिंग का, नॉलेज के आदान प्रदान का, नॉलेज को आगे बढ़ाने का, उसमें भी जिस तरह आज अर्थ स्टेशन बनाया गया, देखिए जो 10 MOU साइन हुए, 6 उसमें शिक्षा से संबंधित है। फिर एक नॉलेज शेयरिंग के ऊपर कि वर्ल्ड नॉलेज एक प्लेटफॉर्म बने, भारत का एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें भूटान भागीदार बन रहा है। तो हमारा जो एक रास्ता है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने का, और उस रास्ते से अपने यंगस्टर्स को आगे ले जाने का, अपने यूथ को आगे ले जाने का, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान के भी जो यूथ हैं, जो यंग हैं, जो युवा हैं, वो भारत के भागीदार बने और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। He also mentions, sir, about how it is very crucial to connect scholars and educators beyond borders. How should we understand this statement? See, knowledge it goes across borders, and now the whole approach is to share knowledge, and within the country and across countries. So with Bhutan, that is now what has been offered by the Prime Minister, that in India we have already developed a knowledge network where all the universities, IITs, etc. are connected. True. And Bhutan will also become a partner in that network. And these MOUs are with 4 Indian institutes of technology, a National Institute of Technology in Silchar, which is close to Bhutan. So this can gradually develop into a very strong base for the young scientists, young researchers, young academics of Bhutan to fully make use of the opportunities available, and whatever information they want, it will be available on this knowledge network. And also whatever they produce, whatever they create, whatever they generate, that will be very quickly shared on this platform. So it is a very good opportunity for the youth of Bhutan to connect with the very wide knowledge network of India, network of scientists, network of students, network of academics. बिल्कुल। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उनकी एग्ज़ाम वॉरियर्स जो उनकी किताब है वो भी बुद्धिस्ट जो लर्निंग्स हैं उससे प्रेरित है। और उन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जिक्र किया। लेकिन अगर हम बात करें तमाम जो विश्व के जो देश होते हैं, जो उनकी तरक्की होती है, जो विकास होती है, वो उनकी GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम भूटान की बात करते हैं तो इस GNPH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का उन्होंने जिक्र किया। तो किस तरह से आप देखते हैं कि जब वो बात करते हैं कि जो ये भारत के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है, भारत भी सीख सकता है कि किस तरह से जो भूटान ने अपने पर्यावरण के संरक्षण को लेकर आगे काम किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी 15 अगस्त की स्पीच में भी जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात की थी, नो टू प्लास्टिक कहा था, प्लास्टिक रिसाइकिल की बात की थी, और यही कहीं ना कहीं भूटान ने पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया है जो भारत के लिए भी, भारत भी उससे सीख सकता है। देखिए जिस तरह पर्यावरण प्रिंट का जो है, जिस तरह पर्यावरण दूषित हो रहा है, उस तो प्रगति जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, जिस रास्ते पर पूरी विश्व चल रहा है, मानव समाज चल रहा है, क्या वो सही रास्ता है? ये गांधी जी ने भी एक रास्ता बताया था, भूटान एक और रास्ता बता रहा है कि जो आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नहीं मेजर करिए, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, वो खुश है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि
आप प्रोग्रेस क्यों चाहते हैं? कि लोग खुश रहें, इसलिए चाहते हैं। तो अगर किसी तरह एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स से अब लोगों की खुशी, लोग कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, उसको एक मेजर किया जाए और उस तरफ सब गवर्नमेंट ध्यान दे और सब लोग ध्यान दें, तो शायद सब जनता, लोगों के लिए भी अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया कि ये अच्छी बात है, ये देखने वाली बात है। उन्होंने एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो उन्होंने कहा था अपने इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस के एड्रेस पे, प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी बात पूरे हमारे देशवासियों से कहा था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल आप ख़त्म करें। तो वो भी एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो इस तरह किस तरह एक मानव जाति और हैप्पीनेस की तरफ जाए और ब्लाइंड ग्रोथ की तरफ न जाए, मैं समझता हूँ उससे भारत को भूटान से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और मैं से आपको रोकेंगे, यहाँ पे हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं सुधाकर दास, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब प्रधानमंत्री वहाँ युवाओं को संबोधित कर रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहाँ पे संबोधित किया, यकीनन उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर भूटान आगे बढ़ता है, भूटान के युवा आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो 125 करोड़ भारतीय हैं, 1.3 बिलियन भारतीय, वो उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे और हर क्षेत्र में वो भारत जो है वो भूटान की मदद करेगा, उस हर क्षेत्र में उसकी प्रगति के लिए वो कार्यरत रहेगा। कैसा रहा प्रधानमंत्री का वक्तव्य? उन्होंने कहा कि आज रविवार का दिन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपको, लेकिन जिस तरह से हम देखा कि बहुत एकाग्रता से वहाँ मौजूद जितने भी छात्र थे वो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। किस तरह से प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद प्रतिक्रिया आपको मिल रही है वहाँ के छात्रों से? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण थी और प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था उसको पूरा भी किया। काफी ब्रीफ रहा उनका पूरा वक्तव्य, लेकिन ब्रीफ जरूर था। जोर जो तमाम जो क्षेत्र हैं दोनों देशों के रिश्तों को जो मजबूत बनाते हैं उनका जिक्र करते हुए, और फ्यूचर किस तरह का हो सकता है, भविष्य कैसा हो सकता है दोनों देशों के बीच रिश्ते को, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। और खासतौर से वो जो एक संदेश दे रहे थे कि जो भारत का युवा है, भूटान का युवा है, उनके बीच का एक कनेक्शन, वो उसको बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। और ये उन्होंने कहा कि भूटान से सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को काफी कुछ सीखने की जरूरत है, जिसका जिक्र आप दोनों भी कर रहे थे। और खासतौर से हैप्पीनेस की जो बात है, और जो एक माइंडलेस हेट के ऊपर हैप्पीनेस का अगर जोर होता है तो उससे हार्मनी आती है, हार्मनी से पीस, और पीस से फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही, और भूटान से ये संदेश निकलेगा, प्रधानमंत्री के जरिए ये संदेश निकल रहा है। दूसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही, देखिए कल आपको पता होगा कि कल जो 10 समझौते हुए हैं भारत और भूटान के बीच, उसमें से 7 समझौते एजुकेशन से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया अपने भाषण में, IIT कानपुर हो, IIT बॉम्बे हो, NIT सिलचर हो, या फिर नेशनल लॉ स्कूल और भूटान की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच इस तरह के जो समझौते हुए हैं, ये जरूर नॉलेज शेयरिंग को एक तरह से बढ़ावा देगा। और जो रिश्ते हैं उनमें उसमें काफी नॉलेज का काफी ज्यादा जोर रहा है। हमको पता है कि जो हमारे मॉन्क्स जब भूटान आए और उन्होंने यहाँ जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, एक तरह से ज्ञान का जो प्रचार प्रसार किया, तो मौजूदा जो रिश्ते हैं उसका भी एक आधार बनाया जा सकता है, ज्ञान को, शिक्षा को। इस बात को प्रधानमंत्री रेखांकित कर रहे हैं। और उन्होंने एक जो चीज कहा कि भले 4000 से कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट्स अभी इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो क्षमता बढ़ सकती है, बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत की अभी जो एक विकास यात्रा है, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर जो तमाम अन्य चीजों, जो विकास की एक नई गति पर भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो उसमें भूटान भी एक भागीदार हो सकता है। इसकी बात प्रधानमंत्री ने कही। तो एक निश्चित तौर पर काफी अहम संदेश, खास तौर से कल के बाद, कल जो एक बात हुई थी कि जो हाइड्रो पावर है या फिर डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, इसको आगे बढ़ाते हुए जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है, जो सहयोग का क्षेत्र है, उसको डाइवर्स करने की जरूरत है। अगर डाइवर्स किया जा सकता है तो वो कौन से क्षेत्र हैं? वो क्षेत्र है एजुकेशन है, वो क्षेत्र है स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, वो क्षेत्र हेल्थ का क्षेत्र है। तो इस तरह के क्षेत्र है। तो एक तरह से एजुकेशन
फाउंडेशन एक आधार बनेगा। और उन्होंने एक जो भूटान यूनिवर्सिटी को चुना अपने वक्तव्य के लिए, ये संदेश देने के लिए कि भारत बहुत गंभीरता से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को ले रहा है, और इसके लिए भूटान या भूटान के नागरिक जो कुछ भी चाहते हैं वो भारत तो उसमें सहयोग करेगा। और साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो सबसे अहम है भारत और भूटान के बीच, और उसके लिए भी हमेशा भारत गंभीर रहेगा। तो ये एक संदेश भी यहाँ से इस वक्त उन्होंने दिया है। और निश्चित तौर पर जो पूरी छात्र बिरादरी है, हालांकि 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ इस हॉल में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बेहद स्वागत किया है। और हमने कल भी देखा था कि लगातार जो एक उनका स्वागत हुआ था, सबसे ज्यादा स्वागत जो यहाँ की छात्र बिरादरी है, विद्यार्थियों ने किया था सड़कों के किनारे खड़े होकर, और लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप, इस तरह के नारे उन्होंने लगाए जब प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे थे। बिल्कुल। तो जो भारत का जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ जो कनेक्शन भूटान के छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच होगा, यकीनन वो कई नए साधनों को जोड़ेगा, और दोनों देशों के बीच जो साझा नॉलेज सोसाइटी स्थापित करने की बात हुई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। Right, lots more up ahead as we talk about the Prime Minister's visit to Bhutan. It's the second day of his visit. There's lots more on his agenda in the time ahead, in the day ahead. And our reporters Vishal Baristo and Sudhakar Das as well as Neeraj Singh giving us all those updates from the ground. We are in for a short break, but we'll be right back. Stay with us. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं हमारे इस खास पेशकश में, पीएम मोदीज विजिट टू भूटान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्मारक चोटिन भी जाने का कार्यक्रम है। इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता विशाल बैरिस्टो से। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, भूटान के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में है ये मेमोरियल। इसमें जाके प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर वो अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। क्या कुछ खास है इस विजिट में? जया और आप दोनों को सुप्रभात। और यहाँ पर मौसम काफी अच्छा है और मैं इस वक्त हूँ मेमोरियल के अंदर। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने बार बार इंसिस्ट किया है कि हमारा जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको हमें उसका जो बेस है वो हमें और करीब लेकर आता है। और यहाँ पर मेमोरियल को पूरी तरह से सजाया गया है। आसपास जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं और मैं देख सकता हूँ लॉन्ग लिव भूटान इंडिया फ्रेंडशिप, दोनों देशों के झंडे लगे हुए हैं। और इनफैक्ट पूरे थिम्पू के अंदर, पारो एयरपोर्ट से लेकर थिम्पू तक पूरे सड़कों पर इस तरह से झंडे लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो ड्रीम है वो है स्कूल से स्पेस। तो ये एक जो बड़ी चुनौती है, उन्होंने कहा कि कोई भी चुनौती आती है तो उसके लिए यंग माइंड्स है हमारे पास। और भारत जो है एक युवा देश है, उस तरह भूटान जो है वो एक युवा देश है और दोनों मिलकर हम अचीव कर सकते हैं। 2022 तक भारत का एक ड्रीम है कि इंडियन सैटेलाइट में इंडियन को स्पेस में पहुंचाना। तो इन सब बातों को लेकर जब प्रधानमंत्री बात करते हैं युवाओं से तो जाहिर सी बात है कि एक कनेक्ट बनता है। और कल जो विदेश सचिव है उन्होंने प्रेस को बताया कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफी लंबा रिश्ता रहा है, लेकिन अब हम एक नए आयाम ढूंढ रहे हैं और उन आयामों के मद्देनजर हमारा जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, बुद्धिज्म यहाँ का नेशनल रिलीजन है, हम उसको अपना बेस बनाकर एक दूसरे के करीब आएंगे। Right, Vishal.
The Prime Minister, as you were just telling us, in a short while from now to visit one of the iconic monuments of Bhutan, and give us a sense of the significance this visit holds in terms of increasing and strengthening the cultural connect between the two countries. Well, Rukma, when we talk about connect, it has to come from the heart, and Prime Minister has always been insisting on people-to-people connect. Unless you are connected with the people of the country, diplomacy and political relations or trade types, bilaterals will mean nothing. So first thing is the connect, and that comes from the heart. And spirituality is one thing which instantly connects you. If you are a spiritual person, then you would instantly reach out to another spiritual person. And Bhutan, which also enjoys the status of most happy nation in the country, in the world, its happiness is based on spirituality. Remember, Buddhism came to Bhutan from India. Lord Buddha was born in India, and that relation goes to centuries back before Christ. And that is the reason why Prime Minister has always been insisting on this people-to-people connect. India is the largest trading partner of Bhutan, and that importance Bhutan also accepts. There are pictures and news of Prime Minister Narendra Modi's message and his interaction with the king and the Prime Minister, and also the local people, and the warm welcome he had received in Bhutan on his 2-day visit. It is there in all the newspapers. So media is talking about, and I read the editorial in one of the largest daily of Bhutan, and it said that it is not an indication of growing dependence of Bhutan on India, but it is an indication how the two countries are looking for new avenues, exploring new avenues in which both can progress, because Bhutan is a landlocked state. It has its challenges. India has the technology. Bhutan has natural resources. So both can join together for the development. Bhutan is now transforming from the least developed nation to the middle income group. So India is helping Bhutan, and Bhutan knows the importance of the long relations that it has enjoyed with India. बिल्कुल विशाल, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नेशनल मेमोरियल चोटन पे विजिट की, तो जो ये नेशनल मेमोरियल है ये वर्ल्ड पीस को डेडिकेटेड है। जिस तरह से एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिवेश में जिस तरह से लगातार वैश्विक मंच पर भारत शांति का संदेश दे रहा है, ऐसे में एक ऐसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना जो कि वर्ल्ड पीस को डेडिकेटेड है, वर्ल्ड पीस को सिंबलाइज करता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी देखिए, जब हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान के अंदर जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो नॉन वायलेंस और पीस के ऊपर आधारित है, शांति और अहिंसा के ऊपर। और भूटान का जो नेशनल फ्लैग है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें 2 कलर हैं, येलो और सैफरन। येलो दर्शाता है मैजेस्टिक पावर को, और जो सैफरन कलर है वो बताता है मोनेस्टिक स्पिरिट को। तो भूटान के अंदर दोनों को ही बराबर का दर्जा प्राप्त है। यहाँ के जो किंग है उन्हीं के बराबर का दर्जा यहाँ के जो चीफ एबट हैं, जो चीफ प्रीस्ट होते हैं उसको चीफ एबट कहा जाता है, वो दोनों सेम पावर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ के कल्चर के अंदर बुद्धिज्म और पीस और अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और प्राइम मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ की संस्कृति भारत की संस्कृति से कितना मेल खाती है। कल जो प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई भूटान नरेश से, वो भी जो जोंग के अंदर हुई, वो जोंग ऑफिस है यहाँ के किंग का, और उसी जोंग के अंदर जो होम डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्लानिंग कमीशन है, तीनों ऑफिसेज हैं। उसके साथ ही वो समर कैपिटल है चीफ एबट की सीट का। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है रिलीजन यहाँ के कल्चर के अंदर, यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। और चीफ एबट जो इक्वल पावर एंजॉय करते हैं किंग के साथ, उनके साथ साथ जो 5 सीनियर एबट्स हैं, यानी कि 5 सीनियर जो मंक्स हैं, उनको मंत्रियों के बराबर स्टेटस प्राप्त है। तो स्पिरिचुअलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भूटानीज कल्चर, ऑफ भूटानीज लाइफ। बिल्कुल, और स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर, इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीज पर्सनालिटी ऑल्सो। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो आध्यात्मिक पहलू रहा है, लगातार हम देखा है कि बद्रीनाथ या अमरनाथ की यात्रा पर वो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया है। एंड ऑल्सो द वे ही इज इनवाइटेड वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू वाराणसी एंड इनिशिएटेड देम इनटू द वेरियस वेज ऑफ आवर कल्चर।
बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हम विश्व खुशहाली सूचकांक में भूटान के उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस वजह से ये है। वहाँ की जो आध्यात्मिक जो शैली है, जो वहाँ की प्रकृति के साथ जो भूटान के लोगों का जुड़ाव है, वो इसके प्रमुख कारण है। वहाँ के हैप्पीनेस क्वोशंट के बारे में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का भी अगर हम देख सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल जो उनका जो नेचर है, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी, जो उनके पर्सनालिटी का हिस्सा है, वो यहाँ पर बहुत ही खिलकर निकल आ रही है। कल उन्होंने जो बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया, और यही वजह है कि यकीनन प्रधानमंत्री बहुत ही उत्साहित होंगे अपनी इस विजिट को लेकर भी, और वहाँ के मेमोरियल चुंगटांग पे वहाँ पे पहुँचने के लिए भी। जी बिल्कुल ठीक कहा जाए आपने। देखिए, जब हम खुशी की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, तो वो बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर से आती है। जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो शांति आपके चेहरे पे झलकेगी, वो तेज आपके चेहरे पे झलकेगा, और जब आपके चेहरे पे वो तेज होगा, इफ यू हैव द ग्रेस ऑन योर फेस, तभी आप लोगों को अपील करेंगे। आप यहाँ के युवाओं से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग है। ये जो अपील है वो बाहरी चीजों से नहीं आ सकती। आपकी फौज कितनी बड़ी है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है तो वो लोगों को अपील नहीं करेगा। तो यहाँ के जो युवाओं ने मुझे बोला, उन्होंने ये कहा कि आपके प्रधानमंत्री इज अ मैन हु वॉक्स हिज वर्ड्स। वो अपनी बात पर कायम रहते हैं, अपने देश के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, वो उन्होंने यहाँ पर आके उसको इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा 2014 में भी मैं यहाँ आया था, और दोबारा जब मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो फिर मैं आया हूँ, और इस बात को बताने के लिए आया हूँ कि भारत भूटान के साथ हर स्थिति में, हर समय डटकर खड़ा है उसकी मदद करने के लिए। उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको बनाए रखते हुए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए, उसकी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखते हुए, हम जो भी जरूरत है भूटान की, हम उसको हर स्तर पर मदद करेंगे। और ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है वो भारत से ही यहाँ पर आया। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसे रिलीजन की बात कर रहे हैं जिसका कोई कनेक्ट नहीं है हमारे देश से। तो ये जो ब्रिज है स्पिरिचुअलिटी का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूटान और भारत डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली दे हैव अ बॉन्डेज एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एम्बेसडर दयाल भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर दयाल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से भी वो जो उनकी विजिट रही है, कल से हमने देखा कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ उन्होंने समय बिताया। कल एक जो गोम्बा था वहाँ पे भी वो विजिट किया, और अभी वो नेशनल मेमोरियल चौटन जाएंगे। किस तरह से देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में हम भारत और भूटान का सहयोग देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भी एक बहुत ही क्लोज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है दोनों देशों के बीच। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जो हमारी भारत और भूटान के जो पुराने संबंध हैं, जो 2000 साल और उससे पहले से भी जो संबंध हैं, उनकी जो फाउंडेशन है, उनका जो नींव है, वो बुद्धिज्म के ऊपर है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब थी तो भूटान से भी मॉन्क्स आके वहाँ पर पढ़ा करते थे, और यहाँ से भी मॉन्क्स जाया करते थे। पूरा तिब्बतन जो बुद्धिज्म है जो कि भूटान में इस समय है, उसकी रूट्स कहीं ना कहीं भारत में हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध तो भारत में ही, वो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सिद्धार्थ प्रिंस से, राजकुमार से गौतम बुद्ध हुए, वो भारतवर्ष में हुए। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक धरोहर है भारत और भूटान के साथ, जिसमें हमारा पूरा देश और देशवासी विश्वास करते हैं। और इसके ऊपर एक नया भूटान बनाना है, एक नया हिंदुस्तान बनाना है, एक नया भारत बनाना है। तो आज प्रधानमंत्री पहले यूनिवर्सिटी गए, वो एक भविष्य दिखाता है, और उसके बाद अब चौतन जा रहे हैं, तो वो एक पास्ट जो पूरा एक बहुत ही रिच पास्ट है भूटान का, एक स्पिरिचुअल पास्ट है, एक ट्रेडिशनल पास्ट है, उसका भी उन्होंने एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। और ये तो प्रधानमंत्री की अपनी भी एक पर्सनैलिटी है कि वो एक ट्रेडिशन में भी रूटेड है और एक मॉडर्न उनका आउटलुक है, जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा एक सहयोग है और एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, और वही लेकर वो भूटान गए हैं और भूटान में उनको बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। Right, and Mr. Dayal, talking about the traditional and the modern, the Prime Minister, even as he referred to Nalanda University, and he spoke about inviting students of Buddhism, more and more students from Bhutan to study Buddhism here in India. He's also referred to Chandrayaan-2, and he said that it is an instrument of global cooperation. Could you put his thoughts here into perspective? How are we to understand him?
If we are to move forward, and the knowledge covers all aspects of life, from spirituality to science to technology to mathematics. Now, so the entire spectrum of knowledge is available to Bhutanese students, Bhutanese youth, Bhutanese people, whether it is Nalanda University for spirituality, for Buddhism, or our own progress in science and technology. There are so many scholarships being given to Bhutanese students. The Bhutanese students have been invited to come to India and make a satellite, and that satellite will be launched by Indian on Indian rockets. So the entire spectrum will be covered while India interacts with Bhutan, when Bhutan interacts with India, whether it is spiritual, whether it is material, and I would say even on security aspects, etc. also India and Bhutan are working together. Right, and well, when we look at the way forward that the Prime Minister himself has pointed out in his speech, various areas of cooperation, various areas that can be focused on for further growth and development. What would you say they were? That is the entire range. Again, I would say perhaps the most scope would be in service industry, and that's why the focus is on information technology. All these 7 agreements which have been signed, 6 with our top institutions in Indian Institutes of Technology, National Law University in Bangalore, the National Institute of Technology in Silchar, that opens new avenues, new ways for the youth as well as the ingenious professionals of Bhutan to interact with India, to gain from our own knowledge, our own experience, our own wisdom, which has been acquired over centuries and in the last decades. And the whole platform is available. That means all the Indian educational institutions are now available to Bhutanese professionals as well as students to benefit from and to enhance their own knowledge and experience. So whether it is information technology, I think on health there can be much more cooperation, and of course education will be the new frontier of cooperation between India and Bhutan. बिल्कुल, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल, स्पेस और डिजिटल पेमेंट से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, तमाम ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें भूटान और भारत के बीच में सहयोग होगा। रुपे जो भारतीय कार्ड है वो वहाँ पर जारी किया गया भूटान में, और रुपे जो कार्ड है उसका मतलब विदेशों में इसका लेन देन नहीं होता है, लेकिन इसका भूटान में हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल भुगतान को लगातार डिजिटल पेमेंट को लेकर प्रधानमंत्री जोर देते आ रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भूटान में भी उन्होंने इसको अपनी जो पॉलिसी है उसको इंक्लूड कर लिया है। और व्यापार से पर्यटन में भी आपको लगता है बहुत संबंध हमारे बढ़ेंगे, लेकिन ये रुपए कार्ड का वहाँ जा रहा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत से बहुत पर्यटक वहाँ जाते हैं। तो रुपए कार्ड जब भूटान से शुरू होगा, फिर मैं समझता हूँ कि और दूसरे देशों में भी रुपए कार्ड का यूज़ होगा। और डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ भारत भी बढ़ रहा है, और भारत का ये है कि भूटान भी साथ हमारे चले। ई गवर्नेंस की तरफ भी अगर भूटान जाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि भारत तैयार होगा उनको। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है, इस तरह का अगर वो कुछ चाहते हैं तो उस तरह की टेक्नोलॉजी उनको दी जा सकती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जो गवर्नेंस मूव कर रही है, जिस तरह की ज़्यादा सब नागरिक भी उस तरफ जा रहे हैं, उसमें भूटान के साथ भारत चले। और भारत ने अपनी जो प्रगति की है इस दिशा में, उसमें हम भूटान को भी साथ लेकर चलें। ये एक बहुत अच्छा संदेश प्रधानमंत्री ने आज भूटान की गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को और उनकी जनता को दिया। बिल्कुल, साथ चलेंगे भूटान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में निकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दूसरे दिन रॉयल भूटान विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। 2 जून 2003 को शिक्षा के 3 स्तरीय प्रबंधन को सुगठित करने के उद्देश्य से स्थापित इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य के 8 महाविद्यालय आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारत भूटान के संबंधों को वर्षों की परंपरा का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं जुड़े, बल्कि सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। Our shared values have shaped a common world view. This is visible in Varanasi and Bodh Gaya, and also in Jongs and Chortans. And as people, we are fortunate to be the living
vehicle of this great legacy. No other two countries in the world understand each other so well or share so much. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि युवा भूटानी वैज्ञानिक भारत जाएंगे और भूटान के अपने छोटे सैटेलाइट की डिजाइनिंग और लॉन्चिंग पर काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जल्द ही यहाँ के छात्र वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स होंगे। For us, the space program is not just a matter of national pride. It is a vital instrument of national development and global cooperation. Through satellites, benefits of telemedicine, distance education, resource mapping, weather forecasts, and even warning of natural disasters will reach even remote areas. It is even a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan's own small satellite. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान की खुशहाली मानवता के लिए संदेश है। उन्होंने कहा कि इससे सौहार्द कायम होता है। Swami Vivekananda had said, every nation has a message to deliver, ambition to fulfill, our destiny to reach, unquote. Bhutan's message to humanity is happiness. Happiness which springs from harmony. The world can do with a lot more happiness. Happiness which shall prevail over mindless hate. If people are happy, there will be harmony. Where there is harmony, there will be peace. And it is peace that will help societies achieve progress through sustainable development. And we're talking about the Prime Minister's visit to Bhutan. It's the second day today, and our reporters giving you all the updates from the ground. We'll be back in a short while. But here, it's time for a short break. Stay tuned. आपका लेटर। प्रेम नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। पीएम मोदीज विजिट टू भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। आज सुबह से ही काफ़ी चहलकदमी रही। वहाँ भूटान के जो रॉयल विश्वविद्यालय है वहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री और वहाँ उन्होंने वहाँ के युवा छात्रों को संबोधित किया। और हमने देखा जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री ने जब छात्रों को संबोधित किया तो तमाम ऐसे क्षेत्र थे, तमाम ऐसी बातें थीं जो उन्होंने उनसे बात की, उनसे साझा किए, अपने विचार उनसे बात की और उनका हौसला बढ़ाया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मास्टर दयाल जुड़े हुए हैं। मास्टर दयाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इस भूमि के बच्चे हैं वही
हर दुनिया की समस्या का निदान तलाशेंगे। हमारे पास चुनौतियां हैं, लेकिन हर चुनौती के लिए हमारे पास यंग माइंड्स हैं। प्रधानमंत्री की जो ये रहता है, उनका जो अंदाज है, जिस तरह से युवाओं को साथ में जोड़ना, उनको इस डेमोक्रेसी में जोड़ना, उनको लोकतंत्र के जो बदलाव की हम बात करते हैं, जिस बदलाव के बयार की बात करते हैं, हमेशा वो कोशिश रहती है कि हम युवाओं को जोड़ें, किस तरह से उनके जो यंग माइंड है, जो उनके यंग इंटरेस्ट है, उनको हम टैप इन करें, उनको कैटर करें। कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस फ्रेज भी है, कैच देम यंग, तो यही प्रधानमंत्री की हमेशा से कोशिश रहती है, भारतीय युवाओं को जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर भूटान में भी उन्होंने देखा, यही वजह थी कि काफ़ी बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा था यॉल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा। देखिए, उन्होंने अपना जो शुरू में ही कहा कि आप भूटान के भविष्य हैं, आप फ्यूचर हैं भूटान का, तो ये तो उनका बहुत ही अच्छा सोच है कि एक जनरेशन एक स्तर तक लाती है एक समाज को, एक देश को, और उसके बाद नई पीढ़ी उसको और आगे ले जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नई पीढ़ी का सोच अच्छा हो, उसका पॉजिटिव सोच हो। उन्होंने अपने भाषण में बहुत ही अच्छा, जब एग्ज़ाम वॉरियर की बात कर रहे थे, तो कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो बुद्धिज्म से और जो श्री गौतम बुद्ध जी ने कहा, संदेश दिया, उससे बहुत जुड़ी हुई हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा ओवरकम योर फियर, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, और नेचर से भी जुड़े रहिए। तो जो एक आगे बढ़ने का जो रास्ता है, वो केवल माइंडलेस ग्रोथ या माइंडलेस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ ना हो, उसके साथ पर्यावरण का भी ख्याल हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोग उससे भी जुड़े रहें, और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे चले, फियर के साथ बिल्कुल आगे ना चले। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ हार्मनी होगी वहाँ पीस होगी, जहाँ हैप्पीनेस होगी वहाँ हार्मनी होगी, जहाँ हार्मनी होगी वहाँ पीस होगी। ये बहुत ही अच्छा सोच है। दुनिया में हम देख रहे हैं कि इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना हेट्रेड है, इतनी नेगेटिव थिंकिंग है, उसमें उन्होंने सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये संदेश दिया कि आप हैप्पी रहिए, आप हार्मनी का एक भाव रखिए, तो शांति रहेगी विश्व में, समाज में, और उसमें आगे बढ़ने का, बच्चों को खुश रहने का, स्टूडेंट्स को खुश रहने का, और एक अपने लिए अच्छा भविष्य बनाने का सबसे अच्छा वातावरण बनेगा। Ambassador, well, he's also referred to India's historic, about how India is undergoing a historic transformation in a wide range of sectors. How would you say that would inspire the youth? We, both India and Bhutan, are rooted in tradition. We have an ancient past, a very, very glorious heritage. But we have to live in harmony with the world. We have young populations and they have their aspirations, and it is very important that the country develops, and the development should be all around. बिल्कुल। और बताएं एम्बेसडर, हम आपको दिखा दें, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक चोटिल भी गए। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा का, और अपने दूसरे कार्यक्रम के तहत वो जो राष्ट्रीय संग्रहालय है चोटिल, वहाँ पहुंचे। Right, meeting monks there at the Chorten, a very significant part of Bhutanese culture, and Chorten or Stupa, an important monument in Buddhism symbolizing the Buddha's presence. And Prime Minister Narendra Modi reaching out there, strengthening ties of culture, strengthening the people-to-people connect between the two countries. बिल्कुल, थिम्फू शहर के बीचों बीच ये स्थित है, और भूटान के सबसे ज़्यादा आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में ये शुमार है, नेशनल मेमोरियल चोटन, and जो it holds precious Buddhist relics, and it believes that it forms a very important part of Bhutanese religious culture. उनके तीसरे ड्रूक ग्याल्पो की स्मृति में इस मेमोरियल चोटन का निर्माण किया गया था, इसे समर्पित किया गया विश्व शांति के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट, उनकी यात्रा और नेशनल मेमोरियल चोटन में जाना वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा स्मारक है जो वैश्विक शांति को समर्पित है, और वैश्विक मंच पर भारत लगातार विश्व शांति के लिए अपील करता रहा है। Chorten literally means seat of faith, and Buddhists often call such monuments
the mind of Buddha. The Jordan is an extraordinary example of Buddhist architecture and artwork with its gorgeous paintings and intricate sculpture. One of the most iconic monuments of Thimphu. Prime Minister Narendra Modi there paying his respects at the Jordan in the traditional Bhutanese way. धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इसकी बहुत मान्यता है भूटानी लोगों के बीच. We have with us Ambassador Dayal. Sir, would you like to take us to the significance of the message that the Prime Minister is sending out today as he performs this very important ritual, which we believe is a very important part of Bhutanese culture? This monument is it denotes the Tibetan Buddhism, because the Bhutanese Buddhism really came from Tibet, and the monks first came, and so Indian Buddhism, or from India it went to Tibet, and from Tibet it went to Bhutan. They are very mountainous if we think of 1000 years back or even more. And most of the inscriptions and images and writings on Chorten relate to Tibetan Buddhism. And it has been created after the expiry of the third king, third Gyalmo. It was created by third Gyalmo's mother, and it doesn't have any remains of the late king, but the entire sculpture or monument is devoted to world peace, and it reflects Tibetan Buddhism. So it is rooted in the past, that it is Tibetan Buddhism, but the message is for peace in Bhutan and peace in the world. And Prime Minister is going there is a respect, showing respect and regard for Tibetan Buddhism, Bhutanese religion, and also a regard for the third king, and also his devotion for world peace. बिल्कुल एम्बेसडर दयाल, हम जब भी देखें कि प्रधानमंत्री की जब भी किसी भी जगह पर, किसी भी देश में वहाँ पे वो जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की परंपरा और वहाँ की भाषा, इन तमाम चीज़ों को इस तरह से वो आत्मसात कर लेते हैं कि यकीनन वहाँ के लोगों को भी अजरज होता है कई बार प्रधानमंत्री के इस व्यक्तित्व के इस पहलू से. इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही शालीनता से, शांति से वो ध्यान से सुनते हुए इस जगह की जो अहमियत है, इस जगह का जो महत्व है, उसको सुनते हुए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं और बहुत ही आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद वहाँ पे जिस तरह की वाइब्स हम कह सकते हैं कि वैश्विक शांति को समर्पित है ये, और हम देख सकते हैं जो वहाँ प्रेयर्स, जो व्हील्स होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लोग उसको मूव करते हैं और वहाँ पर उस आत्मिक शांति का वो एहसास करते हैं, और यहाँ पर भी हम ये तस्वीरें देख सकते हैं. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद को कोट किया था कि हर देश का एक मैसेज होता है. हर जो भी लोग हैं किसी भी देश के, उनका दुनिया के लिए एक मैसेज होता है. मैं समझता हूँ कि भूटान का जो मैसेज है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मैसेज है, एक हैप्पीनेस का मैसेज है. कि किस तरह एक ये मैसेज है कि नेचर, प्रकृति और मनुष्य में किस तरह एक हार्मनी रखी जाए और वातावरण को शुद्ध रखा जाए. तो बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं. और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का भी जो पूरा जिस तरह से वो चल रहे हैं इस समय, एक दिखाता है कि वो उसको बहुत ही वो प्रभावित है इससे, और एक आत्मसात उन्होंने किया है. वहाँ की जो शांतिपूर्ण वातावरण इस समय होगा, ऐसे मॉन्यूमेंट में हमेशा हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि एक शांति का वातावरण होता है और आप खुद भी बहुत ही काम, ट्रैंक्विल फील करते हैं. मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री इस वातावरण को आत्मसात कर रहे हैं. बिल्कुल, द वर्ल्ड कैन डू विद लॉट मोर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विच शैल प्रिवेल ओवर माइंडलेस हेट. इफ़ पीपल आर हैप्पी देयर विल बी हार्मनी. जी हाँ, लोग तभी खुश होंगे जब उन्हें रोज़गार मिलेंगे, जब हम तरक्की करेंगे, जब हम विकास करेंगे, हमारे जीवन में शिक्षा होगी. और इन्हीं मंत्रों के साथ लगातार प्रधानमंत्री हमारे देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, और यही मंत्र उन्होंने भूटानीज लोगों को भी दिया है. जी. Right, and there we can see what you were referring to, Ambassador, about how the Prime Minister, how anyone who visits a Chorten, and as we can see our Prime Minister there relishing the tranquility
and the beauty of this iconic monument in Thimphu. It is supposed to have golden spires and bells, and it's one of the most visible monuments in Thimphu. In our thinking, our philosophy, it is believed that every place has some vibrations. True. And these vibrations can be very calming and very tranquil, and really they generate the best thoughts. I think this place, this monument in Thimphu has exactly those very positive, very good vibrations, and Prime Minister's whole demeanor is that he is very happy and very content being there. बिल्कुल, भूटान का संदेश मानवता और हैप्पीनेस है, और भारत इस संदेश को समझता है, आत्मसात करता है, और भूटान का ये संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए। किस तरह से क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के कंसेप्ट से भूटान रूबरू कराता है पूरे दुनिया को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर इस वक्त मौजूद हैं थिम्पू में, जहां सुबह उन्होंने युवा छात्रों से मुलाकात की, उनसे मुखातिब हुए, और फिर शांति का संदेश देने, वैश्विक शांति की बात करने वो पहुंचे आके नेशनल मेमोरियल चौटान। Right, and those were visuals there of the Prime Minister just concluding his visit to the National Memorial Chawton, and one of the iconic shrines there of Thimphu, the Bhutanese capital, occupying a very important place. Occupying a very important place in Bhutanese culture and in their spiritual life. Those are visuals there of the Prime Minister's visit to the Royal University of Bhutan earlier in the day. He delivered a lecture to the youth, to the students gathered there, and before he entered, as he entered the premises, as you saw in those visuals, he was greeted by children with flowers in traditional Bhutanese attire, and the Prime Minister touched on a number of important topics in his speech, and that's a commemorative photo of the occasion. The Prime Minister there conversing with students present. Also present with the Prime Minister was Prime Minister of Bhutan, Mr. Lote Tshering. बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं भूटान के सबसे प्रतिभावान युवाओं से मिल रहा हूं, आप में से भूटान के भविष्य के नेता, इनोवेटर, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट निकलेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त जिस तरह से बच्चों के बीच पहुंचे, उनको उत्साहित किया, उनको प्रोत्साहित किया, और पीपल टू पीपल कनेक्ट की हम बात करते हैं, यूथ कनेक्ट की हम बात करते हैं। And as the Prime Minister drove through the roads of Thimphu towards his many appointments in the day, you can see the roads lined with youngsters waving the Indian and Bhutanese flags in traditional attire, greeting the Prime Minister, greeting their visitor for the day. बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जितनी समस्याएं हैं विश्व में, उसका निदान आप ही निकालेंगे। हमारे पास चुनौतियां हैं, लेकिन हर चुनौती के लिए हमारे पास यंग माइंड्स हैं। And in his speech to the students there at the Royal University of Bhutan earlier in the morning, he said no other 2 countries in the world understand each other so well as do India and Bhutan. And as you can see in those visuals, those are visuals there of the Prime Minister's roadshow earlier in the day as he visited the Royal University of Bhutan. Prime Minister in his speech said that today India is undergoing a historic transformation in a wide range of sectors. उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि युवा भूटानी वैज्ञानिक भारत जाएंगे और भूटान के अपने छोटे सैटेलाइट की डिजाइनिंग और लॉन्चिंग पर काम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप में से कई वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स होंगे। And well, we've come to the end of our special show on the Prime Minister's visit to Bhutan. Prime Minister Narendra Modi was on a 2-day visit to Bhutan. A short while back, he visited the National Memorial Chawton, one of the most iconic monuments in
Thimphu, the Bhutanese capital. Earlier in the day, he addressed students with an inspiring lecture at the Royal University. बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरवशाली संबंधों को याद कर पीएम मोदी ने भूटान को दी कई सौगातें और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 अहम MOU पर हस्ताक्षर हुए। LPG से लेकर अंतरिक्ष तक तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिस पर अब भारत और भूटान एक साथ काम करेगा, मिलकर काम करेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर। फिलहाल मुझे और रुकमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।